Hey everyone, Yash and Rohit are here, and Tanmay would be just joining in. So thank you so much for joining another episode. एक बार start करते हैं. This is a rather small, cute episode. We just have four IPOs to cover, and four is a quite a bit for a normal week. But considering the last barrage of IPOs that have been coming along, four seems like a rather low number. And हम चार लोग हैं तो हमने चारों ने एक एक issue divide किया था, so we felt quite happy about it कि बस एक एक issue ही पढ़ना है. And then we'll also cover a special sneak peek into all the IPOs which are coming in October, which should be quite a bit, and quite a bit large size IPOs are coming in. So October should be very, very interesting. So definitely stick around till the end. But just wanted to highlight before we get started that we are not SEBI registered research analysts, and this is just our review of the companies that we are reading. How do we find those companies? Do we feel is there any value in them or not? And we kind of cover it at our own personal level. This is not a in any way recommendation to apply or not apply. Please definitely use your judgment as well and take any decision basis your judgment. We also put these spaces recordings on our YouTube channel. So if you have not subscribed to the YouTube channel, go ahead and subscribe to the YouTube channel as well. It's in the pinned comments in this box in this space का जो नीचे comments है उसमें पहला comment वो है. So definitely you can go ahead and follow that as well. I will also try and pin it in this space. So you should be able to see it in the space at the top of it. But having said that, let me set up the agenda for the day. ऊपर आपको comment दिख गया होगा. So agenda for the day is we'll start with 3 SME IPOs and then go to the one main board IPO, which is again a very small size, so almost SME. But we'll start with Techera, then move to Unilex and Thinking Ed, and then end with KR and Heat Exchanges. And then the last part would be most interesting, which would essentially be all IPOs in October, which are coming. So having said that, maybe we'll start with Techera Engineering. So just to set it up, Yash will be covering this company. From what I understand, this is a very small issue, 35 CR issue, and the company manufactures precise tooling and components for aerospace industry. So it's a very interesting issue. Find the company quite technically sound. But yeah, Yash, do you want to go ahead and cover the company? Sure. So Techera Engineering engages in designing, manufacturing, and supply of precision tooling components for aerospace and defense industries. So again, I am highlighting this. This is tooling company. They make tools which consist of assembly toolings, wigs, fixtures, and MRO tools. So in assembly toolings, there are 2-3 products which are jigs and fixtures. So basically, these are devices that hold your workpieces in place whenever there is a serviceman or a guy who is machine or assembling a aerospace, a jet or something helicopter like. Then another thing is fixtures which are similar to jigs but are primarily used to hold workpiece securely during machine operations. तो किसी में भी अगर मशीन से मैं काम कर रहा हूँ instead of hand use और labor, तो उसमें मैं fixture use करता हूँ. The other product which company makes is MRO toolings, which is again equipment used for maintenance, repair, and overhaul of manufacturing equipment. तो इसमें ये लोग हैंड टूल्स बनाते हैं, जैसे रेंचेस हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, बेसिक रिपेयर्स के लिए. देन स्पेशलाइज्ड टूल्स भी होते हैं इसमें, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, जैसे डायग्नोस्टिक मशीन्स होती हैं जो बताती हैं कि क्या इशू आ रहा है इसमें, तो ये सब चीजें बताती हैं. तो इनका यूज ऑफ फंड क्या है? ये लोग 35 करोड़ रेस कर रहे हैं, जिसमें से 20 करोड़ इज फॉर केपेक्स, 6 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल एंड 5 करोड़ इज फॉर लोन रिपेमेंट एंड द रेस्ट इज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. तो कंपनी कैपेक्स में 5 एक्सेस एंड 3 एक्सेस मशीनरी ले रही है एंड 4 CNC मशीनरी ले रही है फ्रॉम अब्रॉड. प्लस जो इनका वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है, दे आर रेजिंग 6 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ है, इनका रिबल्स जो थे वो डिक्रीज हो गए थे FY24 में ड्यू टू देयर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स सर्विस एंड डिजाइन वर्क. तो इससे पहले क्या था कि एरोस्पेस काफी बिगर पोर्शन था रेवेन्यू का, बट अभी FY24 में ऑटोमेशन इज ऑल्सो लाइक सब्सटैंशियल 40-50% पार्ट ऑफ द रेवेन्यू. तो उसकी वजह से दे हैव फोकस्ड मोर इनटू सर्विस एंड डिजाइन, क्योंकि ऑटोमेशन में सर्विस वाला पार्ट ज्यादा होता है इनका. तो इसलिए इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है गोइंग फॉरवर्ड विल बी अराउंड 175 डेज. इन्वेंट्री डेज इनके कम हो गए हैं काफी, बिकॉज इनका जो
कॉग्स था विच इज 50% ऑफ द रेवेन्यू नाउ, विच वॉज 50% ऑफ द रेवेन्यू नाउ, वो इन्वेंट्रीज कम हो गए हैं बिकॉज डिफेंस में रॉ मटेरियल जा रहा है जो कि कॉग्स पे ही रिकॉर्ड होता है. देन ट्रेड पेबल्स में इनको 82 डेज का साइकिल है. बेसिकली 82 डेज लगते हैं इनको वापसी देने में. गोइंग फॉरवर्ड भी यही रहेगा क्योंकि इनको सप्लायर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करनी है. प्लस इफ यू पे अर्ली देर आर अदर इंसेंटिव एज वेल, जैसे कैश डिस्काउंट वगैरह जो मिल जाता है इनको. तो 165-170 डेज का इनका वर्किंग कैपिटल रहेगा. एंड FY25 में अराउंड 20 करोड़ का वर्किंग कैपिटल दे रिक्वायर्ड. इन टर्म्स ऑफ पीएस जो मैं मेंशन करूं इनके, जो उन्होंने अपने आरएसपी में लिखा है, दे हैव मेंशन्ड पारस डिफेंस एंड आजाद इंजीनियरिंग विच आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल टू व्हाट दे डू. सो आई थिंक प्रॉपर पीएस मेंशन नहीं है. एंड दैट इज ऑल्सो मेंशन बिकॉज उनका प्राइस टू अर्निंग्स आर क्वाइट हाई. एवरेज लूं तो 83 का प्राइस टू अर्निंग्स आ रहा है दोनों का, विच इज नॉट कंपेरेबल बिकॉज वो काम ही ये नहीं करते हैं. तो दूसरा सेगमेंट हो गया इनका ऑटोमेशन का, विच इज फ्रॉम डिजाइन टू कंसेप्चुलाइजेशन टू कंस्ट्रक्शन, एंड उसको एक साथ इंटीग्रेट करके स्टार्ट करना ऑटोमेशन सिस्टम्स को. तो वो लोग काम करते हैं. इसमें इनके 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सिस्टम्स हो गया जिसमें रोबोटिक सिस्टम्स बना के देते हैं, जैसे मेग वेल्डिंग करने के लिए, BYS स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए, एंड अदर प्रोडक्शन टारगेट्स को ऑटोमेट करने के लिए. देन देर इज कन्वेयर सिस्टम्स जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर सिस्टम सप्लाई करते हैं. ये रोलर हो गया, बेल्ट कन्वेयर्स हो गया, जो कि ज्यादातर असेंबलिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में काफी यूज करा जाता है ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेस को. एंड बात करता हूँ थोड़े फाइनेंशियल स्कीम के, तो वी कैन क्लियरली सी कि काफी फ्लक्चुएशन है इनके पैट मार्जिन में, एंड उनका भी रीजन इन्होंने दे रखा है. तो FY21 FY22 तो कोविड टाइम था. कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान कर रही थी टू जनरेट रेवेन्यू. बेसिकली दे वर क्वाइट स्ट्रगलिंग. तो स्ट्रगलिंग फेस में उन्होंने काफी फिक्स्ड कॉस्ट अपने इंकर करे, ट्रायल एंड एरर करा, तो जिसकी वजह से इनका नहीं आया. बट एट द एंड ऑफ FY22 दे डिसाइडेड कि अब हमें एरोस्पेस की तरफ ज्यादा फोकस करना है. तो वी कैन सी क्वाइट इंप्रूवमेंट, बट स्टिल देयर वाज अ लॉस. In FY23, this segment contributed, the aerospace segment contributed 71% of the revenue. तो कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट पुश था अगेन, एंड काफी बिजनेस मिल रहा था इन लोगों को. देन FY24 देयर वाज सिग्निफिकेंट राइज इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन्स. काफी बड़ा जंप आया इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में. अराउंड from 4% it has 4.9% से 12.5 हो गया. This is also of pension जो उसे टोटल सेक्टर काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर है जिसमें बेटर मार्जिन्स हैं. और जो फेस है, जो वाला सेक्टर बेसिकली सब Hey, yes, रिपीट your कस्टमर्स हो voice चुके is हैं. तो breaking quite a bit. Yes, आपकी voice काफी break हो. हेलो, इज इट फाइन नाउ? Yeah, let's just go on. डिड यू गाइस मिस एनीथिंग और No, not really. सब कुछ सुना हमने. It was just slightly breaking in between, but it should be good, so you can go ahead. Okay. So then again, talking about the automation sector, which is more of a service vertical and has better margins compared to aerospace segment. तो इसकी वजह से इनका FY24 में काफी मार्जिन इंप्रूव हुआ है. एंड अनदर कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन इंप्रूवमेंट का था, विच वॉज कि अभी FY22 से दे फोकस्ड ऑन एरोस्पेस. तो many of their client were repeat customers. तो उसकी वजह से they were offered better margins as well. And I think the company is good, but they're not really into what we call manufacturing components, etc. There's not much into it. They basically manufacture these tools and all, which is kind of niche and will be beneficial going ahead because of this MRO push, which is maintenance, repairs, and overall in aerospace industry. So अभी कंपनी के टोटल एसेट्स इज क्लोज टू अराउंड 37 करोड़ FY24 पे. देन अनदर ये 20 करोड़ कैपिटल लेके इन्फ्यूज करेगा, तो अराउंड 57 करोड़ के आसपास इसका टोटल एसेट हो जाएगा. टर्नओवर पे ये 100% मार रहा है. 100+ % एसेट टर्नओवर है इसका. प्लस 6 करोड़ इसका वर्किंग कैपिटल से भी आएगा. तो ये दो चीजें क्वाइट इंडिकेटिंग मी की कंपनी 65 करोड़ 70 करोड़ टॉप लाइन इजीली मारेगी एंड 7 to 8 करोड़ बॉटम लाइन मारेगी. तो पोस्ट इशू 135 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रहा है.
which will be 15 to 16 forward P basis FY25 अगर ये 135 crores पे लिस्ट होता है. बट आई थिंक 135 crores पे तो लिस्ट नहीं होगा. तो आई थिंक 20% लिस्टिंग मिल सकता है इसमें. एंड इवन आफ्टर 20% लिस्टिंग पे ये डिसेंट है. मतलब इवन आफ्टर लिस्टिंग अगर 20% पे होता है तो बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. Got it. Thank you so much, Yash, for your read. मेरी एक दो points थी इस पे, मैंने वो कंपनी पढ़ी थी. So एक चीज which I wanted to highlight was that there's a big push from government for MRO in the aerospace हेलो company, aerospace division. Yes, can you hear me? मनीष, can I not hear you or Rohit, can you hear me? is it for me I only? can hear you, Manish. Okay, then it is only yes. Let me just text him saying, hey, we can speak. Just let me check. Okay. So I was just saying that I wanted to highlight two things, which is one, on the MRO side, government has a big push on the MRO in the aerospace industries, and उनमें ना उनकी अभी recently एक regulation भी आई थी जिसमें उन्होंने GST कम करके 5% कर दिया था on all MRO tooling products of aerospace. So what this will do is कि इससे पहले ना GST all over the place था, किसी प्रोडक्ट में ज्यादा लगता था, किसी प्रोडक्ट में कम लगता था. अब हर प्रोडक्ट में GST is a consistent 5%. So that will definitely help push the industry. So that should help give some push to this industry and essentially all the companies in it. So this is a hot industry which should lead to it having some advantage. Other than that, I was looking at the Enkel list, and Enkel list was quite good, quite decent. I saw quite a few good names. सबसे पहले, in fact, this is something which Rohit or yes, you guys want to speak about. I saw Maharashtra Defense and Aerospace Venture Fund. What is this exactly? Have they came in any IPO before this, or like from what I know, it's a JV between a bank and a MIDC, but yeah, do you guys have any detail on this? IDBI कैपिटल Yeah, मार्केट्स उनका वो है ना, इन्वेस्टमेंट मैनेजर बिहाफ ऑफ दिस महाराष्ट्र डिफेंस फंड. एंड आई थिंक ये रैपिड वॉल्स में भी है सेम एंकर. Got it. correct. Yeah, it's MIDC's this thing. MIDC's fund. या मोस्टली लग रहा है कि किसी मिनिस्टर का पैसा गया है कंपनी में. You shouldn't be saying those things, but yeah. It seems like it's a government's fund which is being managed by a bank, is how I'll put it. But yeah, that's about tech era. Rohit, do you have anything to add from your side? Just one thing, this is not explicitly mentioned in the client list. I mean, they don't talk about the customer names directly, but if you dig around a little bit on the internet, you'll see that their clients are the cream of the cream in the aerospace vertical. They have HAL, they have Bombardier, they have Boeing, they have Lockheed Martin. So I feel थोड़ा प्रीमियम मिल ही जाएगा इसको, कितना पता नहीं. I think Guess has given a good range, but I still feel that this is still a very niche space. Even providing tooling is not that straightforward. You need a lot of approvals and you need very specific capabilities, certifications in order to do this. So it's not, while it is not the component itself that they're making the pieces that are needed to make the components. They also do some precision machining, which is not broken down. Again, I promise the RFP doesn't specify how much of it is just tools versus structures versus precision components. But just looking at the kind of machines they are taking in the capex, it also indicates that they're intending to go more and more into the more machined and deeper components piece. So I feel it can be looked at slightly futuristically also. So yeah, that's maybe my 2 cents. Got it. I will also add one more thing. So this is a SKI Securities IPO. They are a rather new LM. दो ही इशू आए हैं, इससे पहले इनका मकॉप्स करके एक इशू आया था. दिस इज देयर सेकंड इशू व्हिच इज कमिंग इन. सो LM wise, from what I know, they enjoy a good repute, but they don't have a history to go along with it. But yeah, that's our read of
Tech Era. We have kind of completed the first company, which is Tech Era. We'll now move on to the second company. उसकी बात कर लेते हैं. So this company's name is Unilex Colors. Unilex Colors जो है वो pigments, chemicals और food colors बनाती है. And it's a 31 CR issue, and it's a HAME securities issue. So maybe Rohit, do you want to go ahead and talk about Unilex? Sure. So Unilex, as Manish said, is a 31 CR issue from the House of Hem. They seem to be having a party now in the last few months. It looks like every second or third issue is from Hem Securities. So they are a manufacturer of pigments. Pigments are used in paint, food color, ink, and so on. So they do two things. They manufacture pigments and they also trade pigments and food colors. This is essentially a play in one of the sub-segments of the specialty chemical space, which honestly has not done very well for the last couple of years in India. So 45% of what they do is manufacturing, 55% is trading. And the idea behind that is so that, like say they make some 5-6 pigments, some shades of blue and so on. But if the client also wants a shade of green, they'd want to be able to provide a full sort of stack solution for them. So it's a combination of what they can manufacture and what they're able to source and trade. But one thing is their manufacturing percentage, if you see, as a part of their business, actually falling year on year from a percentage standpoint. So it's gone from 85 crore 3 years ago, that is in FY22, to 65 crore last year. So that's a bit concerning. Though the utilization has gone up, production volume is going up, the manufacturing percentage is going down, which just suggests that the pricing, which is a very structural problem that chemical space has had, is pricing is not in their favor and they've had to sell their products at lower and lower prices. So this is again reflective in their mix of domestic versus export, where 20% is domestic, 80% is export. And everyone kind of knows, well, I've not studied it specifically in the case of pigments. In general, in the chemical space, been an issue with this whole China dumping thing, which has had a big negative impact on this sector as a whole. This also is reflected in their top line being stagnant. Like many companies, most of the companies in the space are facing the same problem. So they're doing around 145 crore in revenue, very low margins, about 3% margin. Again, this is because 55% of the business is trading and only 45% is manufacturing. The other thing is they are today at almost a 95% capacity. And there is no planned increase in capacity explicitly. The use of funds is for working capital and some debt repayment, but no increase in capacity. And there is one sentence somewhere in the RFP that says that they're on the lookout for inorganic acquisitions to boost capacity, but nothing has been identified. So again, that's a question. If they're at 95% and next year they move to 100% as per their target, what next? Where will this business go 1 year down the line? It's not very clear. The company also, in one sentence in the RFP, says that they are targeting 165 crore revenue next year, which is like hardly 12-15% year-on-year growth. So there's nothing inherently very exciting to me. It's coming at around 19p. There's a very similar company called Kesar Petro Products, which is a decent peer. They're at around 24p. But I somehow feel that market really doesn't care about this gap that much right now. It's not like Kesar is at 24, this is at 19, so 19 ko 24 leke jayenge log. So I somehow am not very excited on this. The company looks solid, but lack of growth, lack of projected growth doesn't strike me as very exciting to pay 19p for this business. If you understand the chemical sector and all the various pieces that go into it, what some of the macro levers are, and then you want to play this space through this company, then sure. But I personally will be avoiding this issue. Got it. Thank you, Rohit, for your review on this. Again, wanted to highlight that the chemical sector in itself hasn't been doing very well, and especially considering that the markets, SME markets haven't been doing well of late. So this is like coming at a time when chemicals plus the market. So again, doesn't seem like because of the lack of growth, this is a very this is a HAME issue. So I don't think it will list negative. So if it is available at a very decent subscription, chances maybe can take a bet, because there is a very high chance that this doesn't get subscribed quite heavily, because क्योंकि कई सारे issues एक साथ फंस रहे हैं. Maybe I'll talk about that later, but that is what our read was with respect to Unilex. Tanmay, yes, do you guys have to add anything on Unilex, or we can move ahead to the next issue? No, nothing to add from my side.
I haven't read the company well, so I will not speak anything about this. The analysis is done very well. Got it. So maybe with that we have covered two companies. हमने दो कंपनियों की बात कर ली है. यूनिलेक्स की अभी हमने बात की, उससे पहले हमने टेकेरा की बात की थी. If you have missed any of the issues, kindly subscribe to the YouTube channel at the top and go ahead and listen to them. And maybe also subscribe to the channel for any future issues. मैं एक और कंपनी देख रहा था which I was trying to search, which was Indian Phosphate. Again, a chemical industry company which had came up very recently, like September itself, and hasn't been doing very well of late per se. The issue is down, like let's say 40% from its top. So it seems that chemical companies are on that downturn only and haven't changed. It was again a very hotly subscribed issue, and there was a lot of talk with respect to it. So I assuming Unilex would probably have, like again, shouldn't be saying it, but if it opens too high, then it can also have something similar in terms of the issue. So just be careful. And if it is available, like if subscription chances are very good, I might target it for some like one or two lots, try and get a lot here and there. But that's pretty much it in terms of the read of Unilex. We'll now move on and cover the third company, which is थिंकिंग हैट्स. तो थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट की एक बात करता हूँ. तो ये कंपनी जब मेरे को दी गई थी, हम चार कंपनी थी, तो मुझे बोला गया था इस कंपनी का जीएमपी सबसे ज्यादा है तो इसलिए ये ले लो. बट देन आई रियलाइज दिस इज एसेंशियली द वर्स्ट ऑफ कंपनी ऑफ ऑल. सो मेरे साथ फिर से एक और बार धोखा ही हुआ इन शॉर्ट. बट इफ आई टॉक अबाउट दिस कंपनी, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल इशू. 15 CR इशू है. Company is coming at like let's say 55 CR market cap. Book built issue hai, and when I was looking at it, the issue is already like 17x subscribed when Tekera and Unilex are like 2-4x subscribed. If I talk about the company is a pretty much khichdi. It is trying to do too many things, but the company is a production company. It operates in the MICE segment, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन सेगमेंट, वो करती है कंपनी. और उसमें जो है कंपनी बेसिकली मी सेगमेंट में तो काम करती है, उसके अलावा ना इंटीरियर डिजाइनिंग भी करती है, विजुअल रिटेल डिजाइनिंग भी करती है, जिसमें वो इन स्टोर डिजाइन सॉल्यूशंस करते हैं, इंटीरियर डिस्प्लेस वगैरह बनाते हैं, साइनेज बनाते हैं. और उसके अलावा कंपनी जो है वो डिजिटल ओटीटी मूवी प्रोडक्शन वगैरह भी करती है. सो काफी सारे काम कर रही है एक साथ, बट ग्रोथ कंपैरेटिवली कहीं भी नहीं है. जैसे अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 26 CR रेवेन्यू किया है, थिंकिंग हैट्स कंपनी ने इन FY24. अगर मैं ये 26 CR का ब्रेकअप बताऊं तो कंपनी ने जो है अराउंड 14 CR जो है वो किया है अपना प्रोडक्शन से, और उसके अलावा 9 CR किया है रिटेल एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग से. सो जो वो स्टोर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, साइन वगैरह बनाते हैं, और 2 CR किया है मूवीज एंड ओटीटी से. इनने जो अपना RHP उसमें पूरा मूवीज एंड ओटीटी का ही डाल रखा है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो बस 7% है. और अगर जो कंपनी का इवेंट मैनेजमेंट से रेवेन्यू आता है वो 14 CR है, विच इज 60%. बट अगर आप देखोगे तो पिछले साल भी वो 14 CR था. सो इट्स नॉट लाइक इट हैज बीन ग्रोइंग. वो 14 CR के मुकाबले 14 CR ही है इस बार. रिटेल एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है, साइनेज वगैरह काम है, जो मुझे एग्जैक्टली समझ ही नहीं आया कि कंपनी कहाँ साइन लगाती है अपने वगैरह, वो अराउंड 7.5 करोड़ था पिछले साल, इस बार 9.5 करोड़ है. तो इनफैक्ट जो 4 करोड़ आपको ग्रोथ दिख रही है कंपनी के टॉप लाइन है, उसमें से 2 करोड़ तो यहाँ से आ रही है साइन वगैरह वाले चीजों से. और जो कंपनी मूवी वगैरह बनाती है उसमें उन्होंने 2 करोड़ का काम किया, जो कि लास्ट टाइम 29-30 lakhs था. तो उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि ये ग्रोथ आ रही है, तो मे बी दैट इज वाई द कंपनी इज प्रोजेक्टिंग दैट मच. बट अगर आप FY22 में देखोगे तो FY22 में भी उन्होंने 2 CR का काम किया था मूवीज एंड ओटीटीज के लिए, which had suddenly came down to 30 lakhs in FY23, is again went up to 2 CR in FY24. So again, too many things happening in the company and not really one thing which stood out. 15 CR जो कंपनी रेस कर रही है उसमें से अराउंड 2 CR का उनको लोन रीपे करना है, और बाकी 8.5 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी रेस कर रही है. और बाकी जो है वो तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है कंपनी के. अगर इसके बाद में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जैसे मैंने बात की, तो 26 करोड़ जो कंपनी ने रेस किया है उसमें उन्होंने 3 CR बनाया है, और तो विच इज डिसेंट, लाइक 12% पैट है. लास्ट ईयर भी एटलीस्ट उनका पैट थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, ऐसे एकदम क्रेजी तरीके से नहीं बढ़ा है जैसे कई सारी कंपनियों का हम देखते हैं. लास्ट ईयर उन्होंने 22 CR पे 2 CR बनाया था, इस बार उन्होंने 26 CR पे 3 CR बनाया है. एट 3 CR कंपनी कमिंग एट 17p
मुझे एग्जैक्टली पी है तो समझ ही नहीं आया कंपनी का, क्योंकि इतने सारे काम एक साथ कर रही है एट सच ए स्मॉल साइज। वन मोर थिंग विच आई वुड वांट टू हाईलाइट कि प्रमोटर की डाइल्यूशन जो है वो अराउंड काफी ज्यादा डाइल्यूशन है, 25-26% डाइल्यूशन है, उनके पास ऑलरेडी स्टेक नहीं था। सो आफ्टर आईपीओ जो है 57% ही बचेगा प्रमोटर के पास, स्पेशली इन कंपनी विद जस्ट 55 CR मार्केट कैप, उसमें उनके पास बस 57% है। सो इसलिए सीम लाइक अवॉइड टू मी। अगर पीएस की बात करूं तो कंपनी ने ई फैक्टर और इंस्पायर फिल्म्स की अपनी पीआर बताए, जो कि अराउंड 19 और 18 पीई पे ही है। सो उस हिसाब से भी कंपनी पीएस के बराबर ही आ रही है। सो कुछ स्पेस दिखी नहीं, और ये इंडस्ट्री में भी क्या है, ये माइस प्ले है नहीं, मतलब ये कंपनी जो है वो मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह इतने करा नहीं पाएगी, क्योंकि ये छोटी कंपनी है उनके मुकाबले। इसके मुकाबले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एक अभी रिसेंटली आई थी मैक कॉन्फ्रेंसेस, जो कि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू था, पर वो भी काफी स्ट्रगल कर रही है मार्केट में, अगर आपने देखा हो तो अगेन डिडंट लाइक द कंपनी। वन लास्ट थिंग फ्रॉम माय एंड, एलएम की बात करूं तो एलएम इनके होराइजन है, विच अगेन इज अ हिट एंड मिस sort of a LM, doesn't have a great track record. So because of that, I'm going to completely avoid this issue. But yeah, that was what my read was of Thinking Hats. मेरे को एक और बार बेकार कंपनी दी गई फॉल फॉर ये बोल के कि इसका जीएमपी बेस्ट है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग टू दिस कंपनी। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वोंट लिस्ट वेल, लिस्टिंग जैसा भी हो, बट जो फंडामेंटल्स है मेरे को लग रहा है उस हिसाब से मैंने अपना रिव्यू दिया है। Anything that you three have to add, or we can kind of move forward? If you guys have any questions, kindly post them in the chat box as well. I will read all the questions from the chat box, and also subscribe to the YouTube channel at the top if you have missed any of the IPOs. If not, now we can talk about a good company, finally a pretty good company which is coming. KRN Heat Exchangers की बात करते हैं। So जो KRN Heat Exchangers कंपनी है, 350 करोड़ का मोटा मोटा 340 CR का मेन बोर्ड इशू है, होलानी का एलएम का इशू है, और जो कंपनी है वो फिन एंड कॉपर ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स बनाती है अलग अलग प्रकार के, और उसके डाइकिन वगैरह मेन क्लाइंट्स थे जिनके लिए हीट एक्सचेंजर्स बनाती है। सो तन्मय, डू यू वांट टू कवर KRN Heat Exchangers? मेरा आवाज आ रहा है कि? Yes. So KRN Heat Exchanger Limited is a leading manufacturer of aluminum and copper-based fin and tube type condensers and evaporator coils. तो इन दोनों चीजों को मिलाकर अपन कलेक्टिवली हीट एक्सचेंजर्स के टर्म से बात करते हैं फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर, विच इज इन शॉर्ट फॉर्म कॉल्ड एज HVAC एंड आर इंडस्ट्री। सो इनका मैं क्लाइंटल बताता हूँ, डाइकिन इंडिया, स्नाइडर, किर्लोस्कर चिलर्स, ब्लू स्टार, क्लाइम वेंटर टेक्नोलॉजीज, फ्रिजल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज, ये सारी इनके क्लाइंटल है। तो दिस कंपनी इज बेसिकली रेजिंग 342 crores, complete fresh issue, no FS in it. So the main objective behind raise is the capacity expansion for their new facility, which will be located in Neemrana, Rajasthan. So how much capacity they are adding is the main question. So the promoters, by the way, इनका जो मैंने RHP में देखा ना ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, एसएमई कंपनियों में किस तरह का क्या होता है कि दे से कि हम इतने का कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, बट दे डोंट गिव कि कैपेसिटी कितना बढ़ेगा नंबर टर्म्स और इन द रेवेन्यू टर्म्स। सेम गोज हियर। एलएम एसएमई वाला है तो उन्होंने एसएमई वाली हरकतें करी है, अच्छे से लिखा नहीं कि हम कितनी बढ़ाएंगे, बट इंटरव्यू से फिगर आउट हो पा रहा है। सो दे सेड दैट वी आर डूइंग आवर जितना हमारा आज एक्स कैपेसिटी है तो 7x कैपेसिटी नया बिठाएंगे आफ्टर द कैपेक्स कंप्लीशन। तो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, इससे कंपनी 7x मोर रेवेन्यू देन द करंट वन कर सकती है, एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू कमेंस दिस न्यू फैसिलिटी इन FY25, मतलब रफली इनके हिसाब से February March ऑफ नेक्स्ट ईयर ये होना चाहिए। सो दिस कंपनी डिड 247 crore revenue in FY23 and PAT of 32 crores. And in FY24 it did 308 crores and PAT of 39 crores. मतलब रफ में 25 से 30% का decent growth है. But one thing to see in this is the EBITDA margins have fallen from 20% to 19%. तो अभी इसका ना क्या होता है, अभी करंटली अगर इसका मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखूं तो ये तीनों प्रोडक्ट्स का ब्लेंडेड करके 85.2% है, और ये इंडस्ट्री 96% तक जा सकता है। बट इससे एक चीज क्लियरली समझ में आती है कि FY25 में ग्रोथ नहीं आने वाला है। ओके, तो अभी बात ऐसा है कि ये कंपनी को इवेल्यूएट करना और इसको वैल्यूएशन देना इज बेस्ड जस्ट ऑन द फॉरवर्ड अर्निंग्स, वो भी 2 से 3 साल की फॉरवर्ड अर्निंग्स पे। तो
जस्ट प्रमोटर से कि हम 7 गुना नया रेवेन्यू करेंगे इज नॉट इनफ फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म. इसको कुछ न्यूमेरिकल्स चाहिए. तो आई जस्ट वेंट एंड सॉ देयर एसेट टर्न रेशियो. तो इनका FY22 में एसेट टर्न रेशियो वाज आई थिंक 7.8 टाइम्स, जो घट के 7.2 टाइम्स रहा और अभी घट के 5.5 टाइम्स रहा. तो अगर मैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पे जाऊं तो 6.5 टाइम एसेट टर्न के हिसाब से ये 1850 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू पोटेंशियल रखते हैं. शायद अगले 3 से 4 साल में उतना अचीव हो सकता है. ओके, तो अभी FY25 में कितना रेवेन्यू पोटेंशियल या फिर कितना रेवेन्यू जंप आ सकता है इसका एक अंदाजा देता हूं मैं. अगर आप इनका FY24 के बैलेंस शीट के क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप कॉस्ट इन्वेंट्री परसेंटेज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री परसेंटेज टू COGS अगर देखोगे तो उसमें 21% का राइज है. मतलब ये कंपनी का जो अगले साल का ग्रोथ प्रोजेक्शन है ना, इतना मुश्किल नहीं निकालना. बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सी द एडिशनल इन्वेंट्री एंड जस्ट कंपेयर द मेटल प्राइसेस. एज इनका मंथली और क्वार्टरली पास ऑन मॉडल पे कंपनी काम करता है. मतलब पिछला क्वार्टर पिछले मंथ का जो रेट रहेगा दैट विल बी अ बेंचमार्क फॉर दिस कंपनी फॉर प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ और क्वार्टर. तो उसके हिसाब से आप रफली निकाल पाओगे कि ये कंपनी अगले साल अराउंड 16 से 22% के बीच ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहा है. तो पहले बात एक बता दूं कि इन्होंने 9.54 करोड़ का प्री आईपीओ किया है एट 200 पर शेयर. अभी 220 पे आईपीओ ला रहे. तो नेट नेट में ये कंपनी ऑलमोस्ट 350 करोड़ का रेस कर रहा है. 342 नहीं बोलूंगा मैं. तो ये कंपनी का ऐसा है कि करंट पे यार ऑलमोस्ट 32-33 टाइम्स पे आईपीओ आ रहा है. तो आई फील लिटिल प्राइस्ड है, बट कंसीडरिंग द ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन इट कैन शो गुड गेन्स. तो मैं ना अभी पॉजिटिव बातें होगी, थोड़ा निगेटिव बताता हूँ. इनका customer concentration is very high from a single customer which is Daikin India. 33% revenue comes from Daikin. दूसरा निगेटिव है इनका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. इनका कंडेंसर और इवापोरेटर कॉइल्स है, इनका जो टॉप 2 प्रोडक्ट्स है उससे करीब 93% रेवेन्यू आता है. एक्चुअली ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है, जो जैसे सोचता है उसके हिसाब से होगा. द थर्ड थिंग आई सॉ इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ मार्जिन्स. तो ये इंडस्ट्री मतलब इसका अगर मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के हिसाब से देखूं और इस ट्रैक भी देखूं मैं, तो ये FY25 में इनका ड्यू टू कैपेक्स एक्चुअली बाय द इन्होंने पहले से 32 करोड़ स्पेंड करके रखा है और ये 250 करोड़ मतलब नेट नेट में 300 करोड़ कैपेक्स है. तो इसका डेप्रिसिएशन का इनको ये साल एक्सपेंस बैठेगा इन पार्शल. तो इनका और अगर मैं इनका देखूं ना तो मेटल प्राइस को देखता है फिर ये साल इनका थोड़ा सा मार्जिन हल्का सा बिड्डा लेवल पे घटेगा. और तीसरा एक चीज Just है to कि stop you in between, we are talking about KRN Heat Exchangers. काफी सारे क्वेश्चंस है कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं. So it's KRN Heat Exchangers. Please go on. Sorry. यस. सो इनका और एक निगेटिव ऐसा है कि दिस कंपनी डजंट हैव एनी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स विद देयर क्लाइंट्स. मतलब फ्रॉम द लार्जेस्ट और फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, नो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स विद देयर क्लाइंटेल. और एक चीज देखो तो मैं इनका 78% रॉ मटेरियल है ना इम्पोर्टेड होता है. तो मलेशिया वियतनाम से आता है. मतलब 100% में 78% रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट होता है. मतलब इसके ऊपर मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि हिंडाल्को इज कमिंग विद ट्यूब टाइप काइंड ऑफ कुछ तो भी उन्होंने प्रोडक्ट बोला. इनका रॉ मटेरियल आता है वो. तो वो बोल रहे कि अगले 2 साल में वो आ जाएगा तो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा. बट स्टिल सेइंग कि 30-40% 2 साल के बाद भी रहेगा. वो बोल रहे कि वी वांट टू मैच आवर रॉ मटेरियल्स विद द इंटरनेशनल क्वालिटी. और ये कंपनी सिर्फ 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था. इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत छोटा है. तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है तो मैं इसका कुछ ज्यादा प्रोडिक्शंस कर पाऊंगा. मतलब ना ये कंपनी को वैल्यू करना ऐसा है कि FY25 में इसका ग्रोथ बहुत ही मिनिमल आने वाला है और मार्जिन में ज्यादा इंप्रूवमेंट ना होने के कारण शायद इसका पैट ज्यादा मूव ना करे. मतलब 39 करोड़ तो ज्यादा से ज्यादा 45 करोड़ चला जाएगा. बट इफ आई कंसिडर FY26 तो देखो इसका प्रोजेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है बिकॉज वी डोंट नो कि कितना यूटिलाइज कर पाएंगे FY26 में. बाय द वे अभी ये करंटली 15% ऑफ द रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, 85% आता है डोमेस्टिक से. बट एक चीज इंटरेस्टिंग ऐसा है कि इनका इंटरनेशनल कस्टमर्स जो है वो पिछले साल 9 थे. मतलब FY23 वाज 9 कस्टमर्स, नाउ इट्स 18 कस्टमर्स. और कंपनी ने इनडायरेक्टली बोला है कि हम ये जो नए और जो एग्जिस्टिंग है सबका वॉलेट शेयर बढ़ाएंगे. तो ये कंपनी और ये भी इन्होंने बताया कि इनका एक्सपोर्ट में मार्जिन अबिट आई थिंक नंबर में डालो तो 100 से 150 बेसिस पॉइंट ज्यादा है. तो आई फील FY26 कैन बी वेरी गुड फॉर द कंपनी. तो इसके ऊपर ना व्यू बहुत क्लियर है कि लिस्टिंग गेन ये देकर जाएगा. बट इस आई एम नॉट श्योर कि ये अगले 5 से 6 महीने या फिर 3 क्वार्टर तक वो गेन्स होल्ड कर पाएगा क्या. तो ऐसा कुछ प्रोजेक्शन बनता है इसका कि ये लिस्ट अच्छा होगा फिर घटेगा फिर एक अच्छा लॉन्ग टर्म एक अच्छा पैटर्न बनेगा. तो इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है. बट आई पर्सनली फील कि ये
1850 करोड़ का जो एसेट टर्न के हिसाब से कैलकुलेशन निकल रहा है, ऑलरेडी ये 308 कर रहे हैं। और अगर मैं वो 5% का अगर मैं क्या उसको वेरिएबल पकड़ू, तो नेट नेट में कंपनी अराउंड 2200 करोड़ रेवेन्यू कर सकता है अगले 4 साल में। आई फील द ग्रोथ नंबर्स कैन बी आउटस्टैंडिंग 4 से 5 साल में। इफ दे डू गो टिल दिस नंबर्स, तो ये कंपनी कैन बी अ सॉलिड वेल्थ क्रिएटर। तो आई फील ये कंपनी इज एब्सोल्युटली गुड फॉर लिस्टिंग गेन्स। एंड द सेकंड थिंग आई वुड से इज कि ये अगर आपका 3, 5, 7 साल का व्यू है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका एंकर बुक के बारे में बताता हूँ। तो एंकर बुक में नाम मतलब जितने मुझे एक्सपेक्टेड थे उतने तो नहीं आए, बट लार्जेस्ट एंकर वॉज दी एलएम इटसेल्फ। एलएम का एक फंड है होलानी वेंचर कैपिटल करके, उन्होंने लिया है। एंड इसमें व्हाइट ओक भी है, बंधन को भी छोटा पार्ट है, कोटक इज ऑल्सो ऑलमोस्ट टू वेरी स्मॉल 2% ऑफ द एंकर बुक। तो ओवरऑल डिसेंट इशू है, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ कंपनी है। बट वही चीज है कि सच कंपनीज यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि यार मतलब कब क्या हो जाए वी डोंट नो, बट अच्छी कंपनी है ओवरऑल। Got it. Perfect. Thank you so much, Tanmay, for your review on KRN. I don't think I have anything to add. Your review was quite comprehensive. Just one review from my end is key. It would be almost impossible to secure allotment in this. So definitely be very mindful of all other options. There are other options. Maybe उनकी बात कर लेता हूँ मैं very quickly. For everyone's benefit, 30th को Diffusion करके एक IPO है, Diffusion Engineers जो क्लोज हो रहा है. Again it's a main board, very small IPO. इसका हम रिव्यू वीकेंड पे करेंगे अच्छे से, बट इट्स अ 158 CR IPO, सो उसमें भी अलॉटमेंट काफी ज्यादा टफ रहेगा, बट इट इज ऑल्सो अ गुड कंपनी विच यू शुड कीप इन माइंड. एंड ऑल्सो 30th को 3-4 SMEs क्लोज हो रही हैं, जिनमें से सहस्त्र करके एक SME है जो कि ESDM इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का काम करती है. तो अगेन इट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू. वीकेंड पे उसको भी कवर करेंगे, बट डेफिनेटली मेक श्योर कि सहस्त्र और डिफ्यूजन में जो है आप पैसे अगर आपने यहाँ डाले तो वो वापस से इनमें नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज द मनी वोंट बी रोटेटेड. सो डेफिनेटली बी माइंडफुल ऑफ दैट इशू. एंड सहस्त्र इज अ बिग इशू. इट्स अ 186 CR इशू, 186 CR का इशू है, एंड रिटेल भी उसमें काफी बड़ा पोर्शन होगा. सो should be slightly easier to get allotment. Like it won't be as crazy as some of the other issues go, and it's definitely very hot as well. So definitely keep that in mind, and we will review both of these companies, and also we will review 3-4 more SMEs which are lined up on 30th. दिव्याधन रिसाइकलिंग करके फोर्ज ऑटो है, नेक्सस पेट्रो है, उनका भी रिव्यू करेंगे ओवर द वीकेंड, क्योंकि वो मंडे को क्लोज हो रहे हैं इश्यूज. सो वी हैव टाइम, बट जस्ट मेक श्योर कि वो मंडे वाले इश्यूज में जो अमाउंट है वो आप अगर फ्राइडे को लगा दोगे तो वापस नहीं लगा पाओगे. सो बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दैट फैक्ट. But yeah, that's what our review of today was, where we reviewed the 4 companies. अगर आपने कोई भी कंपनी का रिव्यू मिस कर दिया है तो go ahead and follow the YouTube channel, link is at the top, ताकि आप उसका रिव्यू सुन सको. Having said that, we will probably move on to one last segment, which is where everyone's interest was, which is some of the SME, some of the big size IPOs which we are hoping and which we are expecting in October. So Tanmay, do you want to give a very high level list of which all are the IPOs which are almost coming? सर उससे पहले ना कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चंस मैं उनको कवर करूंगा. पहला तो कि मुझे 7x का नंबर कहाँ से आया. तो ये जो 7x है इसका 2 चीज है. पहला तो एज पर RHP एंड एसेट टर्न. सेकंड इस मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में क्लियरली बताया, मेरे मन का कुछ नहीं बता रहा हूँ. एंड द सेकंड थिंग कि डस KRN हैव अ प्रोडक्ट एक्सपोजर टू चाइना. मतलब अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंपोर्ट की बात कर रहा है या रॉ मटेरियल की बात कर रहा है. देखो रेवेन्यू इनका चाइना से कोई नहीं आता, बट आउट ऑफ देखो मतलब 100 अगर ये 100 रुपए का रॉ मटेरियल सोर्स कर रहा है तो उसमें 78% इनका इंपोर्ट है. और 78 में से 4% मतलब नेट नेट में बोलूं तो 3 to 3.5% रॉ मटेरियल इंपोर्ट चाइना से होता है. मैंने नंबर्स देखे. आई थिंक मलेशिया इज 43%, वियतनाम इज मतलब अगर 78% इंपोर्ट है तो मैं उसके 78 का ब्रेकअप दे रहा हूँ आउट ऑफ 100. ओके, तो 43% is around Malaysia, 35-37% is around Vietnam. Some is I think high single digit is from South Korea, and 4%, 3 to 4%, 4.2% close to is from China. तो चाइना से इनका एक्सपोजर नहीं है. Now I'll come to the main part कि अगले महीने में कौन से IPOs आएंगे. तो एक मैं रफ बताता हूँ. तो सबसे पहले आना चाहिए अफकॉन्स. ओके, अफकॉन्स विल बी अ बिग इशू. अंदाजे से $8 बिलियन इशू है. शाहपुर जी पलून जी ग्रुप कंपनी SW सोलर 5 साल पहले आया था, आपको याद होगा, जो 80% नीचे था IPO प्राइस के 2 से 3 साल बाद.
और इट इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। आई थिंक 1250 करोड़ का फ्रेश है और रेस्ट पूरा ओएफएस है। Then one more issue we have, everyone is highly interested in this, Waaree Energies, around 4000 करोड़। I think मतलब जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से 3600 करोड़ की 3600 की साइज बनती है। बट एज पर EGM डन ऑन 14th March 2024, they have increased their issue size, fresh issue size from 3000 to 3600 and almost 80 to 100% से OFS बढ़ा है। मतलब नेट पे 4400 का इन्होंने एज पर EGM किया है। बट न्यूज आर्टिकल से कि ये 3600 के अराउंड आएगा। लेट्स सी, टाइम बताएगा क्या होता है। The third one is the largest one till date, Hyundai is expected in late October, next month के एंड में आना चाहिए। बहुत बड़ा इशू है, 25,000 करोड़ के अराउंड का इशू है। फिर और 3-4 इशू है। वन ऑफ देम मतलब एक इंटरेस्टिंग इशू है, मतलब छोटा है बट इंटरेस्टिंग है। आपको बीलन कैपिटल पता होगा, एवरीवन्स फेवरेट एसएमई बैंकर, उनका मेन बोर्ड आ रहा है, उनका फर्स्ट मेन बोर्ड ममता मशीनरी करके आईपीओ आ रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ। और 2-3 आईपीओ है, लाइक निवा बुपा है तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी बड़ा इशू है, 2500-3000 का है। देन वी हैव शिवालिक, देन वी हैव ट्रांसरेल लाइटिंग 920 करोड़ का, और 2-3 छोटी इशू। तो नेक्स्ट मंथ पाइपलाइन विल बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब जितना 2015, 16, 17 में रेज हो उतना नेक्स्ट मंथ रेज होने वाला है। तो इसके हिसाब से फंड्स का प्लानिंग होगा, और एसएमईज भी थोड़े अच्छे बड़े साइज के एसएमईज भी आने वाले हैं। Got it. Any dates on Hyundai? Hyundai approx कब तक आ सकता है? Very high level. I feel it would be around 23-24 of October around, क्योंकि सर आज प्लांट विजिट्स भी थे वहां के। प्लांट विजिट्स हुए वहां पे आज, मैंने खुद फोटोज देखे आज। तो आई फील जनरली 3-4 वीक पहले होता है सर। ओला का अगर मैं देखूं टाइमलाइन तो ओला में भी सेम हुआ था, विजिट्स का ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद वो हुआ था, और इसका भी वैसा ही कुछ आना चाहिए 3-4 हफ्ता। बट आई फील मैन 1 month फ्रॉम हियर लग जाएगा, 1 month या फिर 25 डेज रफली, क्योंकि बड़ा इशू है ना सर, इसका रोड शोज और थोड़े होने हैं, एंड देन प्लांट विजिट्स होंगे, फिर वैल्यूएशन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स। और ठीक है, आपको बैंकर्स 4 बैंकर 5 बैंकर समझ देख के समझ में आ गया होगा कि इनके लिए डोमेस्टिक थोड़ा अप्रोच करना हल्का सा मुश्किल हो जाएगा। Got it. So definitely a very interesting month coming across. Keep your funds ready. There are a lot of big size IPOs, so there's like almost everyone will get at least one allotment next month. So definitely this is the time to have the most funds ready. This is the time to, but again, definitely read through the companies. Do not apply basis anyone. Least of us our recommendations. We just talk about the fundamentals. So make sure you follow the YouTube channel and follow all 4 of us. We do this on a weekly basis. हम हर weekend पे करते हैं ये। जब issues बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो week में 2 बार भी करते हैं। But definitely join in, and this was what today's episode was. Thank you so much for joining, guys. We will see you guys again soon. हेलो सर, आवाज आ हाँ रहा है जी। मेरा? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा है चैट में कि शेयर होल्डर कोटा वाला कोई है क्या? नेक्स्ट मंथ 99% कोई भी आईपीओ शेयर होल्डर कोटा वाला नहीं है। ओके, नहीं है। नवंबर में 1 या 2 रहेंगे, दो आने चाहिए नवंबर में। ओके, एंड और एक है कुछ तो ठीक है, बट दैट्स नॉट रेलेवेंट। तो और एक चीज बोलूंगा कि नेक्स्ट पेज भी करना है। डिफ्यूजन एक छोटा है बट बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, और सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड लार्जेस्ट एसएमई टिल डेट, वो भी हम कवर करेंगे। Yeah, we'll do that space on the weekend. So definitely join back in, follow all of us so to keep updated with the schedule. But yeah, thank you so much guys for joining. Have a good night ahead.